student, welcome to my channel. Good morning. Today I'll discuss with you the 9th video of fluid dynamics. So fluid dynamics is usually studied in BSc, MSc and engineering branches of few of the engineering branches. Okay, so we were discussing chapter number 1. So today we will discuss a question from chapter number 1, equation of continuity. I have already explained you many derivations. Okay, now the question is, before starting the video, I want to make a request. If you have not subscribed my channel, please subscribe to my channel, okay, and share my videos with your classmates. चलिए start करते हैं question से. Prove that liquid motion is possible when the velocity at particular point P, I'll say the coordinate of that particular point is x, y, z is given by. So this is the velocity at u. So velocity at x represented by u, velocity at y represented by v, velocity at z represented by w. So value is 3x square minus r square upon r to the power 5, 3xy upon r to the power 5, 3xz r to the power 5, where r square is x square plus y square plus z square. And the streamlines are intersection of the surfaces. So the equation of the surface is given by the plane passing through the OX point. So it is represented by bracket x square plus y square plus z square whole to the power 3 is equals to c constant, y square plus z square to the power 2. Okay, now let's start. First we have to prove the that liquid motion is possible when velocity is given by this, and then we have to show this. Okay, streamlines are intersection of the surfaces by the plane. So this question will be done in 2 steps. This is the one step number 1, and the other step is here, step number 2, to determine the streamlines. Fine. So step number 1 will do. To prove that the liquid motion is possible, for this we have to show. How we can show that liquid motion is possible? So for that we have to show the equation of continuity. Okay, equation of continuity. So we will take for that is del u by del x plus del v by del y plus del w by del z equals to 0 is satisfied. We have to satisfy this. If we satisfy the equation of continuity del u by del x, del v by del y, del w by del z equals to 0, then we can say the fluid motion is possible. Okay. So here, starting from here, it is given that r square is equals to x square plus y square plus z square. Now differentiating both the sides, okay, and I am differentiating with respect of x. So what it will become? Del r by del x will equals to x by r. I'll just explain you. So 2r del r is equals to 2r del r is equals to 2x del x. For y and z we will not differentiate, it will become 0. So 2 will be cancelled, del r by del x, taking this del x in the denominator, so it will become x by r. I hope it is clear to you. Similarly we can do for y, and similarly we can do for z. So equations will become del r by del x is equals to x upon r. Similarly del r upon del y will be y upon r and z upon r. Clear? Now del u by del x. What is del u by del x? U is given to you. Now this is given to you. Can we differentiate this with respect of x? Yes. So I have differentiated and I got the value del u by del x is equals to 6x minus 2x r to the power 5 minus 5 r cube x. This is u. Okay, this is u. I want to differentiate this with respect of x because we have to find del u by del x. Okay, this is given to you in the question. We have differentiated that u with respect of x. Similarly, v is given to you. We have differentiated it with respect of y. Similarly, w is given to you. We have differentiated it with respect of z. Okay, so you will get these values. Now del u by del x, if we write it very properly, then we get 3x by r to the power 7, and inside the bracket we will get 3r square minus 5x squared. From here I'll just tell you. See what it is. 6x r to the power 5 minus 2x r to the power 5. Okay, can I solve it? I'll just do this as well. Isko bhi kar lo. 5 3 15. So 15 r cube x to the power 3. Okay, now minus minus plus 5 r to the power 5 x upon में r to the power 10 upon में r to the power 10. अब इसको सॉल्व करो. देखो x r to the power 5 x r to the power 5 6 है यहाँ पे, माइनस में 2 है,
और r टू द पावर 5 और x है तो प्लस में 5 है, और बाहर से हमें मिल गया यहाँ पे माइनस में 15 r क्यूब और x क्यूब, ठीक है, और अपॉन में हमें मिल गया r टू द पावर 10। अब ये देखो 6 और प्लस 5 11 माइनस 2 इज 9, सो 9x r टू द पावर 5 माइनस 15 r क्यूब x क्यूब अपॉन r टू द पावर 10। इसमें से अब क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 अगर आपने कॉमन लिया और साथ में आपने इसमें से x भी कॉमन ले लिया और आपने इसमें से r क्यूब भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बच गया, 3 3 जा 9, ठीक है, x भी कॉमन है, r स्क्वायर बच गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस में ऐसे ही रहेगा 5 आ जाएगा, r क्यूब कॉमन ले लिया है और x है तो x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास r टू द पावर 10 है, r टू द पावर 10 से r टू द पावर 3 कैंसिल कर दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा r टू द पावर 7। तो ये जो सेम टर्म है वही लिखी है, 3x अपॉन r टू द पावर 7 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है। बाकी आप इसके लिए भी कर लोगे, ये तो आसानी है, ठीक है, इसमें से आप r टू द पावर 3 कॉमन ले लो, 3 3 यहाँ 2 बच जाएगा, देखो r स्क्वायर बच जाएगा, 5y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे r कैंसिल होके r7 बच जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही w के लिए भी कर लेंगे। अब जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे लिए फर्स्ट वाला पार्ट ओवर हो गया, ठीक है ना। हमने दिखा दिया कि पॉसिबल, लिक्विड मूवमेंट, लिक्विड पार्टिकल मूवमेंट इज पॉसिबल। अब हम करने आ रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें डिटरमाइन करना है स्ट्रीमलाइंस। सो स्ट्रीमलाइंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस। स्ट्रीमलाइन को शो करने के लिए आपको इस तरीके से इनका सॉल्यूशन फाइंड करके इक्वल में पुट करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगी उससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, स्ट्रीमलाइंस के लिए। सो हमें क्या करना है, डेल एक्स बाई यू इज इक्वल टू डेल वी बाई वी एंड डेल जेड बाई डब्ल्यू, ये फाइंड करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं, हमने वैल्यूज फाइंड कर ली, u की वैल्यू हमारे पास थी, v की वैल्यू भी हमारे पास है, w की वैल्यू भी हमारे पास है, dx dv dz हमने यहाँ लिख दिया, सॉरी dx ये dy है और ये dz है, तो dx अपॉन यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी u की, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी v की, यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी z की, जो r डिनोमिनेटर्स में थे वो सब कैंसिल हो गए। अब हमने इसके बाद इसको देखिए कैसे लिखा है, देखिए हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया, सो x dx प्लस y dy प्लस z dz तीनों को ऐड कर दिया और ये वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से y और z को y से मल्टीप्लाई किया, y dy प्लस z dz, ये करा। तो हमें ये दो वैल्यूज हमने इस तरीके से लिखी ताकि हम सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकें। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस में किया होगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से आंसर मिला है dy बाई y माइनस dy बाई y माइनस dz बाई z इक्वल्स टू 0। ओके, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, log y अपॉन, हमें क्या मिल जाएगा, log y अपॉन z इज इक्वल्स टू log a। ये आपको समझ में आया, दिस इज व्हाट log y, ओके, इक्वल्स टू log y, ये क्या है log y माइनस log z इक्वल्स टू log ऑफ एनी कांस्टेंट c, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ y अपॉन z इज इक्वल्स टू log ऑफ c, और ये क्या बन जाएगा, y अपॉन z इज इक्वल्स टू c। सो यहाँ पे था y अपॉन z इज इक्वल्स टू c या y इज इक्वल्स टू cz, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज द प्लेन थ्रू OX, ओके, जो OX के थ्रू जो प्लेन की वैल्यू की बात की गई थी कि आपको फाइंड करना है वही है। नाउ इंटीग्रेटिंग वन वी गेट, अब आप इंटीग्रेट करोगे जब फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करते हो, ये वाली जो इक्वेशन थी अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप इंटीग्रेट करोगे तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। सो जो थर्ड है और फोर्थ है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी स्ट्रीम लाइन। यहीं पे फिनिश हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में स्ट्रीम लाइंस ही पूछा गया था, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला पार्ट है वो बहुत क्लियरली नहीं बताया क्योंकि आई होप कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको इस पॉइंट पे आता है। मेरा मेन एम था कि आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना कि क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी लिक्विड मोशन को प्रूव करना होगा तो आप इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाओगे, और जब भी स्ट्रीम लाइंस के बारे में बात की जाएगी तो आप
स्ट्रीमलाइंस के बारे में बात की जाएगी तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे जैसे हमने यहाँ पे किया, ठीक है। dx by u is equals to dy by v is equals to dz by w। तो आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आया हो तो इस तरीके के और बुक में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।